बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस प्रोजेक्ट में हम एक डॉक्यूमेंट क्लासिफायर बनाएंगे यूजिंग हगिंग फेस ट्रांसफार्मर एलएलएम मॉडल। बेसिकली फाइन ट्यून ही करने वाले हैं, ठीक है। जिसके पास एक पीडीएफ फाइल आएगा, यानी कंपनी का जो एक डॉक्यूमेंट है, लाइक इनवॉइस शीट, रिपोर्ट, शिपिंग ऑर्डर वाला फाइल, और उसको हम यहाँ पे मॉडल से क्लासीफाई करेंगे, राइट। सो लेट मी अपलोड अ फाइल. I have this PDF file which is company invoice sheet. So यहाँ पे you can see the model predicted invoice and this is the preview of the file. You can clearly see ये एक invoice sheet है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ट्राई करते हैं. This is a shipping PDF file and the model predicted shipping order, and you can see this is actually a shipping detail sheet. Okay, so basically we are going to classify PDF files which belongs to company, okay, using LLM transformer model. Let me try one more. This report, basically inventory report. So this is a report and this is the preview. You can see we have a preview of stock report. You can clearly see. Let me try one more. परचेज वाला देखते हैं. तो यहाँ पे जो मॉडल है ये एक LLM मॉडल है which is fine tuned on custom data set, so it will not do a single mistake. Okay, you can clearly see it is a purchase order and the model is also classifying it into purchase order class, right. अब let's understand the flow of this project. So what we are going to do, first we need to use Kaggle data set, which are documents, a lot of documents. Okay, then we will fine tune large language model using that custom data set with all pre-processing steps like tokenization, fine tuning model, saving the model, and then we will deploy this model into Streamlit app like this one. Okay, so इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूँ. अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस किया है तो होपफुली स्पेशली दिस सेकंड वाला वीडियो आपको आइडिया होना चाहिए कि टोकनाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, स्पेशली NLP LLM डोमेन में, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एंड टू एंड प्रोजेक्ट किए हैं डिप्लॉयमेंट के साथ. अगर आपने ये भी देखे हैं तो आज का प्रोजेक्ट और भी आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक है. So this is the data set जो हम यूज करने वाले हैं. I will share all the links like data set link and code link, lab notebook link, deployment वाला link and in this video description. Okay, so I think introduction बहुत हो गया. Now let's get started. So I recommend you to use Google Colab क्योंकि वो आपको फ्री GPU प्रोवाइड करता है, ठीक है. सबसे पहले you need to install transformer library, dataset, torch and scikit-learn. If you are using Colab, then you only need to install this library. बाकी आप इंस्टॉल होगे, ठीक है. अच्छा, the code, I mean the fine tuning code I already implemented, honestly speaking, because बहुत ज़्यादा repetition है. Previous बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. But I'll explain in detail each line of code. But yes, we will implement from scratch deployment वाला code. Okay, so the first thing you need to do, you have to import the data set with the help of read CSV. अब इस डेटा सेट के अंदर अगर मैं आपको डेटा एक बार फिर से दिखाऊं, यहाँ पे you will get two things, basically the PDF files, a lot of files like inventory report PDF files. If I explore you would see all these are PDF files, but you don't need to do to download all these files. You only need to download this CSV file. Okay, क्योंकि इस CSV फाइल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है. दिस इज द टेक्स्ट, बेसिकली एक इंटायर PDF या जो भी इनवॉइस शीट है, शिपिंग शीट है, उसका टेक्स्ट है. और ये उसका लेबल है, लाइक शिपिंग ऑर्डर, इनवॉइस, शिपिंग ऑर्डर, इनवॉइस. सो टोटल वी हैव 4 क्लासेस: परचेस ऑर्डर, इनवॉइस, रिपोर्ट and shipping order. Okay, so it is a multi-class classification. Now this part is important. First, what we have done, we have just cleaned the text because we need to clean the text now. Like text से यहाँ पे numbers को remove करना, special characters को remove करना, stoppers को remove करना. So उसके लिए you need to import regular expression,
you need to import from nltk.corpus stoppers, and from nltk.stemming you need to import potter stemmer and import nltk. उसके बाद हमने डाउनलोड किया है stoppers को, and then we have created an object like stoppers जिसके अंदर हम stoppers के अंदर जाके वर्ड्स को निकाला और हमने यहाँ पे explicitly language English सेट की है. So now we have stoppers and potter stemmer को यहाँ पे हमने निकाला है like created an object. Okay, potter stemmer मैं आपको बताता हूँ, but this is the function which is exactly performing the same thing like cleaning the text. So यहाँ पे df के अंदर जाकर text के ऊपर हमने अप्लाई किया है इस clean text method को, which is this one basically. So this function return a text which is a clean version. Like सबसे पहले हमने lower case किया है, then we have removed special character using a regular expression subtract method with this pattern. आप किसी टेक्स्ट के अंदर जाके पैटर्न के थ्रू चीजें क्लीन एंड परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी. सो ये वो पैटर्न है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पैटर्न, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पैटर्न ऑनलाइन इवन दो विद ChatGPT. But yes, with the help of this pattern you can remove all special characters from any text, and then we have stored this in text. उसके बाद with the help of this pattern we have removed all extra spaces between 2 words, between 3 words, extra spaces while creating the data set, while creating the sheet PDF files, maybe while typing they add a lot of extra spaces. So this pattern is used for that one. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, we have performed a lot of things in single line of Python code. So first what we have done, finally we have this text. इस text के ऊपर हमने एक loop चलाया, but before running a loop we have performed tokenization, like split the word, we have splitted all the words into the text. Okay, अब one by one यहाँ पे word आ रहा है, and then we are checking if this word not in stop words. अगर stop words में नहीं है then we can go with this word. But if it is in stopper, then you don't need to do all these previous things because this is a stopper. Then we are going to remove it. And once we get the word, I mean it is not a stopper, so definitely we will get that word. Then we are doing to stem it using this stemmer. Stemmer के अंदर जाके आपके पास stem है and we are passing the word. Stemming is basically used to bring any form of word to its root form, like love, second form loved, third form loved, fourth form loving. So if there is a word like loved, loving, I mean third form, second form, so we want to make it or bring it to the root form. So ये सब करने के बाद, since it will be a list, so we don't need a list, we need a string. So we are joining all this operation into a string. और ये हमारा final text, and we are returning this final text and we are storing. So one by one we are passing text and we are storing in new column by the name of clean text, which is a clean version. Okay, इसके बाद हमने इनकोड किया है टारगेट कॉलम को, बिकॉज यहाँ पे टारगेट कॉलम के अंदर लाइक शिपिंग ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये सब क्लासेस हैं. सो वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स. तो उसके लिए आप scikit-learn के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो लेबल इनकोडर. लेबल इनकोडर का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया. देन लेबल इनकोडर के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म से हमने अपने लेबल को ट्रांसफॉर्म किया, एंड दिस इज द लेबल. Now all the 4 classes will be converted into numbers because the machine can only understand numbers, not text. Now since we are going to fine tune LLM model और ये डेटा सेट pandas फॉर्मेट में है, and LLM model needs its own data set object. उसके लिए डेटा सेट से आपको इंपोर्ट करना होगा डेटा सेट, एंड डेटा सेट के अंदर जाके from pandas convert this data into this data set, and it will looks like this dictionary in which you will have clean text and corresponding label. Okay, because LLM can only understand these dictionary types. Depends on your problem. Okay, also depends on your logic and your experience of code. बाकी आप pandas के साथ भी कर सकते हो. उसके बाद हमने ट्रेंड स्प्लिट किया है, डेटा सेट के अंदर जाके ट्रेंड स्प्लिट को कॉल किया बिकॉज फाइनली वी हैव दिस डेटा सेट. और टेस्ट साइज हमने 0.2 रखा, which means that 80% data will be training set and remaining 20% data will be test set. So finally we have this split data set, और split data set के ट्रेंड को कॉल किया ट्रेंड सेट.
train text which will be 80% and test text which will be 20%. Now let's tokenize the text, क्योंकि अब तक हमने देखा कि we just encoded the classes, but we need to encode all the clean text into number, some IDs. okay, तो उसके लिए आप LLM में टोकनाइजेशन करते हो। अब इस टोकनाइजेशन को समझने का ट्राई करना, सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट करना होगा ऑटो टोकनाइजर। अब वो मॉडल जो आप यूज करना चाहते हो उसकी पाथ आपने देनी होगी। तो सिंस वी आर गोइंग टू यूज बट मॉडल, तो ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन वी हैव पास मॉडल नेम विच इज दिस वन, दिस इज योर टोकनाइजर। Now this is the function which is going to tokenize all the text, but before that what we have done, on train text we have called map, in which we have called the function which is tokenize function, this custom function, okay, and batched is parameter। इस map के साथ batched एक parameter आता है जो basically ये decide करता है कि आप data को batches में read करो ताकि आपका speed तेज हो और computation कम से कम हो, ठीक है। And here this tokenize is going to call this examples of clean text, and we are doing all the steps for any tokenization like padding, truncation, max length। tokenization में आपको पता है, अगर आपने प्लेलिस्ट में पहले कुछ वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे हम सीक्वेंस को बराबर करने के लिए पैडिंग में मैक्स लेंथ देते हैं, ट्रंकेशन ट्रू रखते हैं ताकि हम अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो मैक्स लेंथ को एक्सीड करता है, सो वी वांट टू ट्रंकेट इट बैक टू द मैक्स लेंथ, एंड मैक्स लेंथ यहाँ पे 128 है। बाय द वे ट्रांसफार्मर सपोर्ट 512 कैरेक्टर्स, बट आप 128 के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और ये हमने ट्रेन टेक्स्ट के ऊपर कॉल किया, एंड देन वी हैव डन द सेम थिंग फॉर टेस्ट टेक्स्ट। नाउ द लास्ट थिंग, finally we have this train dataset which is a tokenized version, I'll show a bit later, and this test dataset। So I just want to convert them into PyTorch version। So trend dataset के ऊपर मैंने set format के अंदर type रखा torch library, oops, sorry for that, like this torch, and columns मैंने decide किए input IDs, attention mask और label, और ये दोनों मैंने trend dataset and test dataset पे किया। अभी के लिए I just want to show you the first row। So first row के अंदर this is the entire dictionary, यहाँ से यहाँ तक, or this is the label which is a class number 2, and we don't know which number it is, but model will understand it, okay। It could be shipping order, it could be purchase or report, we don't know। and this is the text, ये पूरा का पूरा text के लिए IDs है, but the original text is this much only, यानी उसके अंदर जितने भी words हैं उनके IDs ये हैं, पर just सीक्वेंस को बराबर करने के लिए यहाँ पे 0 पैडिंग ऐड हुआ है 128 लेंथ को बराबर करने के लिए। एंड मॉडल के लिए अटेंशन मास्क हम ये बताते हैं कि जो ये ओरिजिनल टेक्स्ट थे, ओरिजिनल आईडीज हैं, यू हैव टू फोकस ऑन, और ये हमने ऑन रखा यहाँ से यहाँ तक, बाकी हमने 0 रखा दिस थिंग, बिकॉज दिस थिंग्स आर जस्ट फॉर मेकिंग सीक्वेंस बराबर, यानी लेंथ को इक्वल बनाने के लिए हमने पैडिंग किया है। टोकनाइजेशन के सारे स्टेप पे बड़े डिटेल से प्रीवियस कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूं, ठीक है। नाउ लेट्स फाइन ट्यून द मॉडल। अब मॉडल को हमने किस तरह फाइन ट्यून किया? सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर से ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड ट्रेनर। इसको समझने से पहले हमने क्या किया, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के फ्रॉम प्री ट्रेन से हमने मॉडल को लोड किया और हमने मॉडल को अपने क्लासेस बताए, लाइक लेबल इनकोडर के अंदर जाके क्लासेस निकालें और उनकी लेंथ which will be 4 classes, so it is a multi-class classification, and this is the model. Now forget about this thing and forget about this thing, let's understand this thing। अब यहाँ पे जब आप मॉडल फाइन ट्यून करते हो तो आप ट्रेनर यूज करते हो जिसको आप मॉडल देते हो, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स बताते हो, ट्रेन डेटा सेट देते हो, टेस्ट डेटा सेट देते हो, टोकनाइजर देते हो और इवेल्युएशन मैट्रिसेस बताते हो, और उसके बाद ट्रेनर को आप ट्रेन करते हो, और ये है आपका ट्रेनर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड कंप्यूट मैट्रिसेस कस्टम फंक्शंस। सो ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट बेसिकली जब आप एक मॉडल को फाइन ट्यून करते हो तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आप सेट करते हो, लाइक उसको बताते हो कि मॉडल फाइन ट्यून होते वक्त उनके जो भी चेक पॉइंट्स है वो इस रिजल्ट्स नामी डायरेक्टरी में स्टोर होंगे, और मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए मैं हर इपोक के बाद में मॉडल की ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस या जो भी उसके मैट्रिसेस है वो देखना चाहता हूँ। डीप लर्निंग में आपको पता है कि
जब एक बार मॉडल चलता है तो उसके बाद बैक प्रोपोगेशन होता है। बैक प्रोपोगेशन में हम वेट्स को अपडेट करते हैं यूजिंग द लर्निंग रेट ऑल अदर पैरामीटर्स, ताकि ये चलता रहे तब तक जब तक हमारा लॉस कम से कम ना हो। उसके बाद इपोक्स, ये सेफ स्ट्रेटजी हमने इपोक रखा। ये है आपका इनिशियल लर्निंग रेट, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये जस्ट आप अपने मॉडल की स्पीड को बढ़ाने के लिए बैचेस में अपना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट रख सकते हो। 3 बार में इस मॉडल को रन करना चाहता हूँ, वेट डिके विल बी दिस, यानी ओवर फिटिंग से को रिड्यूस करने के लिए। एंड और मैं लोड करना चाहता हूँ बेस्ट मॉडल को हर इपोक के एंड पे। ये तो था ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद scikit-learn के मैट्रिसेस से हमने एक्यूरेसी स्कोर और प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पे सिंस जब आप मॉडल को फाइंड ट्यून करोगे तो हमने इसको इवेल्युएट भी करना था, और इवेल्युएट के लिए मैंने ये कंप्यूट मैट्रिसेस कस्टम मेथड को कॉल किया है। इसके पास एक प्रेडिक्शन आएगा और उस प्रेडिक्शन एक टेक्स्ट आएगा, हाँ प्रेडिक्शन आएगा। उस प्रेडिक्शन का मैं प्रोबेबिलिटी और लेबल्स निकाल रहा हूँ। एंड देन सिंस आई नीड क्लासेस, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी अभी के लिए नहीं चाहिए, वो क्लासेस चाहिए, वो 4 क्लासेस 0 1 2 3 जो मैंने लेवल इनकोड किया था वो मैं इस कोड से निकलवा रहा हूँ। एंड देन प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर को मैं अपना लेबल्स, प्रेडिक्शन एंड एक पैरामीटर एवरेज, उसके अंदर हमने वेटेड रखा। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेसी को भी हम यहाँ पे एक्यूरेसी को भी हमने कैलकुलेट किया। सो फाइनली वी हैव दिस थिंग्स एंड वी हैव प्रिंटेड ऑल दिस थिंग्स राइट हियर लाइक एक्यूरेसी। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है आपका लॉस, वैलिडेशन लॉस, और ये है आपके मॉडल की एक्यूरेसी विच इज 100%। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दिस मॉडल इज ओवरफिटेड। नो, दिस मॉडल कैन नॉट बी ओवरफिटेड बिकॉज ये ट्रेनिंग टेस्ट डेटा पे ये रिजल्ट दे रहा है ना कि ट्रेनिंग डेटा पे। दिस इज F1 प्रिसीजन रिकॉल, ठीक है। सो मॉडल हैज डन गुड जॉब। देन वी हैव सेव जस्ट द मॉडल बिकॉज वी नीड इट इन प्रोडक्शन। तो सेव करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे कोलैब में सेव कर सकते हो, बट आई जस्ट सेव्ड इट टू माय गूगल ड्राइव। तो ये है मेरा पाथ, ये भी पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ। देन मॉडल डॉट सेव प्री ट्रेन एंड टोकनाइजर डॉट सेव प्री ट्रेन। सो फाइनली बर्ड कंपनी मॉडल के नाम से मेरा यहाँ पे एक सेव मॉडल होगा। एंड आई ऑल्सो नीड टू सेव लेबल इनकोडर, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे प्रोडक्शन में पड़ेगी उन क्लासेस को निकालने के लिए। तो उसके लिए मुझे पिकल लाइब्रेरी की जरूरत पड़े। सो पिकल डॉट डंप लेबल इनकोडर विद दिस नेम, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट प्रेडिक्शन सिस्टम बिफोर गोइंग इनटू PyCharm और VS Code एंड क्रिएटिंग द डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल टाइम प्रेडिक्शन सिस्टम। सो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट टू लोड द सेव प्री ट्रेन सेव मॉडल। तो ये है वो पाथ, मैंने मॉडल एंड टोकनाइजर एंड मॉडल को यहाँ पे लोड किया। एंड दिस इज द फंक्शन, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट यस, आई एम पासिंग दिस टेक्स्ट विच इज बेसिकली मेरे PDF का एक टेक्स्ट है, और मैंने प्रेडिक्ट मेथड को ये इनपुट टेक्स्ट पास किया है। और दिस इज द प्रेडिक्ट मेथड विच इज गेटिंग दिस टेक्स्ट। फर्स्ट वी नीड टू क्लीन दिस टेक्स्ट एज वेल, क्योंकि हमने ट्रेनिंग से पहले किया था। सो वी आर कॉलिंग द सेम क्लीन टेक्स्ट मेथड। तो ये हमें क्लीन टेक्स्ट दे रहा है। देन वी नीड टू टोकनाइज दिस क्लीन टेक्स्ट इन द सेम वे लाइक वी हैव डन बिफोर, लाइक पैडिंग ऑल द सेम थिंग्स। सो फाइनली वी विल हैव दिस डिक्शनरी with all the IDs, attention mask of this text, okay. And finally we are doing prediction. So prediction I don't need to do back propagation, so I just got torch, no gradient, okay. I don't want to calculate gradient because this is a prediction system. And this is the model that we have loaded, and I have passed the inputs, basically this one, new user input, and this will be the output of the model. And from output I am getting probabilities, 4 probabilities, because we have 4 classes, and I am getting maximum probability. I am getting the maximum class. This is the predicted class, and since it will be a number, and I don't want to show a number to a user, I just want to show a message, a class. So label encoder के अंदर जाके inverse transforms को मैंने predicted class पास किया, and जैसे मैंने method को कॉल किया, this is the prediction for this text. Then I have passed another text, and this is the prediction which is shipping order.
then I have passed another text purchase order. ठीक है, I hope you get the flow कि हमने किस तरह इस प्रोजेक्ट को प्री प्रोसेसिंग से टोकनाइजेशन से फाइन ट्यूनिंग सेविंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम तक इम्प्लीमेंट किया है. Now let's deploy this model into our Streamlit app, but you need to download the save model wherever you have saved. अगर आपने Google Drive में सेव किया है तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, hopefully you get the idea. The first thing you need to do, यहाँ पे जो save model था like bird company model, you have to unzip it after downloading and you have to open it, keep it somewhere in your folder. Okay, if I show you, you will get all the JSON file while saving. Okay, and then you have to create main.py file जिसमें हम app बनाएंगे, and you also need to bring this label encoder.pkl. You need these three things. Okay, the model, label encoder and main.py. Perfect. Now let's implement the project, but before that first you need to go to your terminal and you have to create virtual environment, and then you have to install all the libraries. Like first you need to install Streamlit, then you need to install transformers and the torch library, py pdf2 क्योंकि इससे हम pdf से text extract करेंगे. I think you need to install these packages for now. Okay, I already installed, but आप install कर लेना. तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे आपको import करके देता हूँ. So first we need to import Streamlit as st. Now let's create UI, I mean the app. तो उसके लिए आप क्या करते हो, st के अंदर जाके पहले तो आप टाइटल सेट करते हो और टाइटल को आप नाम दे सकते हो लाइक डॉक्यूमेंट classifier with transformer, something like that. You can set according to your choice. Okay, if you want you can also add a paragraph by using this write method. तो आप कह सकते हो this project is used to detect company PDFs files. I think it's perfect. You can change it accordingly. Now let's upload the file. So file को upload करने के लिए आप use करते हो st.upload file uploader, and file uploader के अंदर आप दो चीजें पास करते हो, एक मैसेज like choose a PDF file, and the second thing you have to pass type. You can set different types like docx, any word type file, but since we are dealing with PDF, so I will set here PDF. Okay, now I will store the uploaded file into a variable. Just let me show you. या मैं एक बार एक वेरिएबल बनाता हूँ. Why it's showing me these things? But मैं यहाँ पे काम करता हूँ. Just give me a second. Yeah. So uploaded file. ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया. Like this. और अब मैं एक बटन बनाऊंगा, सॉरी नॉट बटन बट मैं जस्ट एक चेक लगाऊंगा. इफ द अपलोडेड फाइल इज नॉट नन, यानी अगर किसी ने अपलोड किया है तब आगे जाके कुछ करें, यानी अगर अपलोड नहीं किया है तो फिर हम कोई एरर का मैसेज दे सकते हैं या कोई मैसेज दे सकते हैं. अब हम आपने इस ऐप को रन करना होगा, तो रन करने के लिए आप जाते हो अपने टर्मिनल में एंड यहाँ पे आप टाइप करते हो Streamlit run main.py. Main.py is basically your file. If it is app.py then you have to type app.py. So enter. यहाँ पे आपका ऐप ओपन हो जाएगा. You can see आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो अपने फाइल्स को. ठीक है, ये आपका फाइल आ गया. परफेक्ट. नाउ जो ही फाइल आ जाए, the first thing we need to do, we have to extract the text from PDF using PyPDF. So उसके लिए आप जो लाइब्रेरी मैंने आपको बताया PyPDF2 वो यूज करते हो. So you need to import this library, import PyPDF2. Okay. So let me create a custom function that will extract
टेक्स्ट फ्रॉम दिस अपलोडेड पीडीएफ फाइल। सो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ लाइक कस्टम फंक्शंस, और इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ, और इसके पास एक फाइल आएगा, ठीक है। और इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ एक्सट्रैक्ट, और इसको मैं अपना अपलोडेड फाइल पास करता हूँ, और ये पलट के मुझे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट देगा। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। नाउ इन दिस फंक्शन वी विल यूज दिस PyPDF लाइब्रेरी व्हिच इज क्वाइट सिंपल। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। PyPDF2 के अंदर जाके एक मेथड होता है PDF रीडर, आप इसको अपना फाइल पास करते हो जो इस फंक्शन के पास आया है, एंड देन यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। किसी भी नाम से आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, और उस लूप के थ्रू मैं इस PDF रीडर को यूज करते हुए टेक्स्ट निकालूंगा, और उस टेक्स्ट को मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसमें स्टोर करूंगा। तो लूप क्यों चला रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। PDF के अंदर हम नहीं जानते कि कितने पेजेस हैं, बिकॉज वी डोंट नो। तो मैं क्या करता हूं, ये चीज मैं डायनामिकली हैंडल करूंगा। मैं लूप के अंदर रेंज मेथड के अंदर जो PDF रीडर है उसके अंदर जाके एक सिंपल सा मेथड है पेजेस, उससे पेजेस निकालूंगा, और फिर सिंस में उसकी लेंथ मैंने लूप तब तक चलानी है जितने पेजेस हैं, तो मैं इसके ऊपर लेंथ यहाँ पे डालूंगा। सो अगर अपलोडेड फाइल के अंदर 3 पेजेस हैं तो ये लूप 3 बार चलेगा, और हर बार एक पेज PDF फाइल से निकालेगा, और फिर मैं आसानी के साथ उसको टेक्स्ट में जोड़ूंगा जो मैंने वेरिएबल बनाया है। जैसे यूजिंग दिस PDF रीडर जिसका मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है। PDF रीडर के अंदर जाके पेजेस मेथड को कॉल करूंगा, और उसको लूप वाला पेज पास करूंगा जो लूप ने PDF फाइल से निकाला है, एंड इसके ऊपर एक मेथड होता है बिल्ट इन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, वो कॉल करूंगा। बस इतना सा लॉजिक था, ठीक है। एंड देन लूप से बाहर ये फंक्शन मुझे पलट के ये टेक्स्ट देगा। सो इस फंक्शन का काम ये है कि इसके पास एक PDF फाइल आएगा, और वो पलट के हमें टेक्स्ट देगा, एज सिंपल एज दैट, और वो टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट कहता हूँ, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है, लाइक टेक्स्ट, ओके, इट वुड बी परफेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूँ एंड कोई फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूँ लाइक दिस वन, और अब मैं अगर टर्मिनल में जाओ, टर्मिनल यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये वो सारा का सारा टेक्स्ट हमने निकाल लिया जो हमने प्रिंट किया था। यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट। अब ये टेक्स्ट हम प्रेडिक्शन वाले मेथड को पास करेंगे, और वो हमें एक प्रेडिक्टेड क्लास देगा। तो अब जो मैं काम करने वाला हूँ ये हम ऑलरेडी नोटबुक में देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्टेड क्लास के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो बेसिकली स्टोर करेगा, और वो सेम मेथड को अब मैं ये टेक्स्ट पास करूंगा, और ये मेथड मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ एग्जैक्टली, बल्कि इसके ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, हाँ डेफ, बल्कि इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। बट उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, जो लाइब्रेरीज आगे मुझे चाहिए वो जल्दी से मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो हमने स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया, ट्रांसफार्मर से ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, उसके बाद टॉर्च लाइब्रेरी इंटरनल इसको चाहिए, PyPDF2, ये लाइब्रेरी में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एपिक लाइब्रेरी की भी हमें ज़रूरत है क्योंकि लेबल इनकोडर हमने सेव किया था। सिंस हमने न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लीनिंग स्टेप्स करने हैं तो हमें चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन NLT के वही सेम स्टेप्स। अब ये जो पिलो से हमने इमेज इंपोर्ट किया है एंड दिस फिट्स लाइब्रेरी, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। अब वो 2 फंक्शन क्लीन टेक्स्ट एंड प्रेडिक्ट वो सेम है, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे लेकर आता हूँ। एक बार जल्दी से हम समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल अपलोड किया, ठीक है। देन हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर वो फाइल अपलोडेड नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, बट अगर अपलोडेड है तो फिर सबसे पहले आप यूजिंग दिस एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम PDF मेथड टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर दें, और वो टेक्स्ट हमने प्रेडिक्ट मेथड को पास किया है, और जो प्रेडिक्ट मेथड है वो बेसिकली यहाँ पे है। ये वो सेम मेथड है जो हमने नोटबुक में यूज़ किया था, और सिंस इसको चाहिए था क्लीन टेक्स्ट तो वो सेम क्लीन टेक्स्ट वाला मेथड यहाँ पे लेकर आया।
अब एक आखिरी काम करते हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सॉरी लोड करता हूँ सेव मॉडल को, जो हमने सेव किया था, आपको याद होगा। सेम तरीके से मैंने लोड किया टोकनाइजर, मॉडल एंड लेबल इनकोडर को, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, और ये था एक्सपेक्ट वाला मेथड। सो अभी अगर मैं यहाँ पे जो पलट के फाइनली यहाँ पे हमें प्रेडिक्टेड मैसेज आ रहा होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए आप st.write यूज कर सकते हो एंड info भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको पास करता हूँ प्रेडिक्टेड क्लास। अब मैं जाके इसको एक बार रिफ्रेश मार के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ फाइल को, दिस वन, ये है यहाँ पर रिपोर्ट, ठीक है, जो प्रोडक्शन यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब हम एक आखिरी काम करते हैं कि जो अपलोडेड पीडीएफ है वी नीड टू प्रीव्यू इट राइट हियर, क्योंकि हमने वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे प्रीव्यू यानी उसकी जो व्यू है वो भी दिखानी है। तो उसके लिए आप ये लाइब्रेरी यूज करते हो, लाइक दिस फिट्स। ये एक पाई म्यो पीडीएफ, इसका एक नाम है, मैंने सर्च किया था, मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मैंने देखा था कि हाँ इससे आप पीडीएफ फाइल को प्रीव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये इमेज वाइज फॉर्म में आपको प्रीव्यू करके देता है। और इमेजेस के लिए चाहिए पिल्लो लाइब्रेरी का इमेज वाला क्लास। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे फाइनली हमने, सबसे पहले तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले के नाम से एक कमेंट डालता हूँ प्रेडिक्टेड क्लास। सो st.subheader के अंदर जाके एक मैसेज देता हूँ लाइक प्रेडिक्टेड क्लास। ये नीचे हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं रेंडर कर दो या डिस्प्ले कर दो इस पीडीएफ को, पीडीएफ फाइल को, एंड डिस्प्ले एज इमेजेस। सो लॉजिक समझने का ट्राई करना। मैं एक सब हेडर डालता हूँ, सब हेडर के अंदर जाके लिखता हूँ पीडीएफ प्रीव्यू। प्रीव्यू कुछ इस तरह लिखा जाता है, आई थिंक प्रीव्यू या, और इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कस्टम फंक्शन, जो मुझे पलट के देगा पीडीएफ इमेजेस। You will understand a bit later, but yeah, this is the function by the name of render PDF. This is a custom function, और इसको मैंने पास किया अपलोडेड फाइल, ठीक है। और ये पलट के मुझे इमेजेस देगा, एंड वी डोंट नो how many images we have in this PDF images variable, so we need to run a loop. So एक बार हम एक लूप चलाएंगे इस PDF images के ऊपर। अगर 3 images है तो 3 बार लूप चलेगा, और हर बार चलने पे हम st के अंदर जाके इमेज मेथड को कॉल करके उसको अपना लूप वाला इमेज, एंड यूज कंटेनर विड्थ के नाम से एक पैरामीटर है, इससे आप ट्रू रखें ताकि ये जो भी इसकी विड्थ हो इस इमेज का उसके हिसाब से वो डिस्प्ले कर दे। अब सारी कहानी इस फंक्शन के अंदर होगी, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो हमें इमेजेस पलट के देगा। तो वो फंक्शन मैंने ऑलरेडी किया है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। इस फंक्शन के पास वो अपलोडेड फाइल आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इस फाइल को रिसेट कर रहा हूँ बाय यूजिंग sick with 0 वैल्यू एंड रिसेटिंग द फाइल पॉइंटर टू स्टार्ट। उसके बाद फिट्स लाइब्रेरी के अंदर जाके ओपन मेथड को मैंने ये फाइल रीड किया, मैंने रीड करके इसके अंदर एक पैरामीटर होता है स्ट्रीम, उसको पास किया, और फाइल टाइप मैंने पीडीएफ रखा। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया इमेजेस के नाम से, और मैंने एक लूप चलाया जो तब तक चलेगा जितने उस पीडीएफ सेम लाइक हमने ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते वक्त निकाला था। यानी अगर पीडीएफ के अंदर 2 पेजेस है तो ये लूप 2 बार चलेगा, और हर बार चलने पे मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसके अंदर पेज नंबर पास किया, ये पेज नंबर, और ये मेरे पास पेज आ गया। पेज के अंदर जाके अब आपको पता होना चाहिए कि इमेज के पीछे असल में पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं, उनकी मैप मैंने निकाली, वो पिक्सेल्स वैल्यू, दिस इज द पिक्सल। अब इन पिक्सल को मैंने प्रॉपरली एक इमेज में कन्वर्ट किया। सो उसके लिए मुझे इमेज क्लास चाहिए था। उसके अंदर एक मेथड होता है फ्रॉम बाइट्स, यानी वो जो पिक्सल वैल्यू थे 0 और 255 के बीच में इमेज के वैल्यूज होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर विजन पढ़ा है तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। फॉर्मेट RGB, पिक्सल का जो भी इमेज का विड्थ है और हाइट है वो सेट किया। अभी के लिए मैंने सैंपल रजा का
उसके बाद जो मेरे पास इमेजेस लिस्ट था उसमें अपेंड किया अपने इमेज को, और ये मुझे पलट के इमेजेस दे रहा है और वो इमेजेस में यहाँ पे गेट करके प्रिंट कर रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। अब मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ एक PDF फाइल, दिस शिपिंग वन, this is the shipping order and we are getting the preview, okay, using just that fits library. So text extract करने के लिए PyPDF2 and PDF फाइल को प्रीव्यू करने के लिए आप fits यूज कर सकते हो। I hope you learn a lot of things from this video, like how to extract text, how to fine tune model। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना एंड वो प्लेलिस्ट आप लाजमी एक्सेस कर लेना, क्योंकि उस प्लेलिस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।